Hello students, welcome to class plus one. First of all, myself Diksha. I will teach you maths. So this is an introductory class. In this class we will discuss the curriculum, the books which you are going to refer in your session, chapters in the corresponding units, weightage of each unit, right? Some key terms, some basic brief introduction about applied maths and standard maths. Applied maths is just introduced in this session for first time, that is with code 241, and the standard maths is with 041 code. So these little things we will discuss in this introductory class. We will not study content at all. So to discuss the syllabus, in plus one you have 6 units in maths. First is sets and functions, second is algebra, third is coordinate geometry, fourth is calculus, fifth is mathematical reasoning, and sixth is statistics and probability. Sets and function unit will contain 23 marks in your final exam. Algebra will be of 30 marks, coordinate geometry will be of 10 marks, calculus will be of 5 marks, mathematical reasoning will be of 2 marks, and stats and probability will be of 10 marks. Means overall you will be having theory paper of 80 marks. Fine. So theory will be of 80 marks plus 20 marks will be there for internal assessment. This internal assessment also divides up into 2 parts. 10 marks will be for internal tests. These tests will be taken by the staff in school, and the 10 marks are allotted to the activities. Activities means normal जो lab activities होती हैं वो. आपको 10 lab activities कराई जाएंगी. उन 10 में से आपसे कोई एग्जाम में फाइनल में एक परफॉर्म करके देखी जाएगी. उसके बेस के ऊपर आपके ये 10 मार्क्स हो गए. ये 10 मार्क्स आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं वाइवा के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए एंड परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, फर्दर डिवाइड हो जाएंगे. और ये जो 10 है ये इंटरनल टेस्ट मीन स्कूल में आपके जो रैकेट में हमारे पास टेस्ट वगैरह होंगे उनके बेस के ऊपर ये 10 मार्क्स. तो 10 प्लस 10 ये आपके 20 मार्क्स होंगे. मीन स्कूल में भी आपको प्रॉपर रेगुलरली आपको टेस्ट में अपीयर होना है प्लस तैयारी करके टेस्ट देने हैं सो दैट यू कैन हैव दीज 10 मार्क्स श्योरली. ठीक है, एंड दीज 10 मार्क्स आर फॉर द एक्टिविटीज. ये हम आपको कराएंगे. ठीक है, सो टोटल पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है, ठीक है. आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द यूनिट्स विच यू आर हैविंग इन योर सिलेबस, we will discuss these 6 units chapter wise. In unit 1, that is sets and function, you will be having 3 chapters, that is sets, relation and function, and trigonometric functions. Unit 2, that is algebra. In this you will be having 6 chapters. Maximum weightage is also from here, algebra. So 4th chapter, that is 3 are in unit 1. 4th one is in unit 2, that is principle of mathematical induction. This is quite easiest chapter in your plus 1. Chapter 5, complex numbers and quadratic equations. Chapter 6, linear inequalities. Chapter 7, permutation and combinations. Chapter 8, binomial theorem. Chapter 9, sequence and series. So these 6 chapters are there in unit 2, that is algebra. Unit 3, that is coordinate geometry. In this you will be having 3 chapters. Chapter 10, straight lines. 11, conic section. Chapter 2, introduction to 3D geometry. Right. Unit 4, that is calculus. In this unit you will be having 1 chapter only, that is limits and derivatives. This is very important chapter from the point of view of your higher studies. If you are willing to opt maths in higher studies, then this chapter is very important for that. Unit 5, mathematical reasoning. This will carry just 2 marks and easiest chapter. You can score well in this unit. The name of unit is also mathematical reasoning, and the chapter 14 chapter 14 is also mathematical reasoning. Next, unit 6, that is stats and probability. In this unit you will be having 2 chapters. Chapter 15, that is statistics, and chapter 16 you will be having probability. Okay, so these are chapter wise. So you will be having total 16 chapters split it like this.
one thing I want to discuss more here, that is there is the introduction of a new subject, applied mathematics, also in this year, okay, in +1. So you have two options for maths, that is applied maths, its code is 241, and normal maths, स्टैंडर्ड मैथ्स जो है दैट इज विद कोड 041. ठीक है, ये कोड्स आपने ध्यान से फिल करने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे. अप्लाइड मैथ्स के लिए कोड है 241 एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए है 041. ये जो चीज है +1 के लिए है, ये सेम है जैसे आप 10th में करके आए हैं. 10th में भी आपके पास दो ऑप्शंस थे मैथ के लिए, एक था बेसिक मैथ एंड द अनदर वाज स्टैंडर्ड. ठीक है, सेम है जैसे ये +1 में भी. ठीक है, अब फर्क क्या है दोनों में? कौन से बच्चे ये ले सकते हैं, कौन से बच्चे ये ले सकते हैं? फर्क ये है कि जो बेसिक मैथ्स वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं. अप्लाइड मैथ ले सकते हैं, नॉट प्योर मैथ्स. ठीक है, 041 कोड वाला वो नहीं ले सकते हैं. ये वाला मैथ किसके लिए है, मतलब ये वाला मैथ कौन ले सकता है? बेसिक वाले. ठीक है, अब स्टैंडर्ड मैथ वाले जो बच्चे थे जो 10th में पास आउट करके आए हैं, वो कौन से ले सकते हैं? वो दोनों ले सकते हैं. बोथ ऑप्शन है उनके लिए. ठीक है, वो 241 वाला भी ले सकते हैं, वो 041 वाला भी ले सकते हैं. मतलब दे कैन ऑप्ट अप्लाइड एज वेल एंड दे कैन ऑप्ट स्टैंडर्ड एज वेल. ठीक है, +1 में, इन +1. ठीक है, अब तो क्लियर हो गया. मीन्स जो 10th में बेसिक करके आए थे उनके लिए तो ये ऑप्शन खत्म ही हो गई. सिर्फ एक ऑप्शन है अप्लाइड मैथ्स की, वो भी कम किसके लिए, क्योंकि बेसिक वाले कहाँ जाएंगे? बेसिकली वो या तो कॉमर्स में जाएंगे या वो ह्यूमैनिटीज में जाएंगे. तो अगर वो ऑप्शनल या फिर एडिशनल में से अगर वो चाहते हैं कि हमने मैथ्स करना है, तो दे कैन ऑप्ट ओनली दिस कोड 241, ये ले सकते हैं. ठीक है, प्योर वाला वो नहीं ले सकते. क्लियर हो गया. अब जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो क्या क्या ले सकते हैं, मतलब वो दोनों ऑप्शंस ले सकते हैं. अब स्टैंडर्ड मैथ्स जो 10th में करके आए हैं वो +1 में अप्लाइड भी ले सकते हैं, +1 में स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं. अब ये कौन से बच्चे लेंगे? जो साइंस स्ट्रीम से हैं. ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले ये ऑप्ट करेंगे 041 वाला. अप्लाइड भी कर सकते हैं लेकिन ये करेंगे. ठीक है, दूसरी बात, अप्लाइड कौन से बच्चे लेंगे? जो कॉमर्स में चले गए. जैसे अब जरूरी तो नहीं है ना कि जिन्होंने 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स किया था वो सारे साइंस के लिए जाएंगे. कुछ कॉमर्स के लिए गए होंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज के लिए गए होंगे. तो वो अगर लेना चाहते हैं तो वो अप्लाइड ले सकते हैं. क्लियर है. सो ब्रीफली मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, बाकी जब रजिस्ट्रेशन होगी तब क्लियर हो जाएंगे ये डाउट्स. छोटी सी बात है, जो 10th में बेसिक करके आए हैं वो +1 में 041 वाला मैथ नहीं ले सकते हैं. दे कैन ऑप्ट ओनली अप्लाइड मैथ्स दैट इज विद कोड 041 इफ दे आर विलिंग टू ऑप्ट मैथ्स इन ऑप्शनल और एडिशनल. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात है, जो 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स करके आए हैं वो दोनों ले सकते हैं. अप्लाइड भी ले सकते हैं, 241 वाला भी ले सकते हैं, और स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, 041 वाला भी ले सकते हैं. 041 वाले कौन से बच्चे लेंगे? जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने आगे जाके इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या हायर लेवल पे उन्होंने मैथ्स करना है. ठीक है, वो ले सकते हैं. अप्लाइड कौन से लेंगे? जैसे सपोज किसी बच्चे ने मेडिकल ले लिया, कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया विद स्टैंडर्ड मैथ. जो 10th में स्टैंडर्ड करके आया, इस बात को ध्यान में रखना. ठीक है, जो 10th में मेडिकल का बच्चा अगर स्टैंडर्ड मैथ करके आया या कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का बच्चा अगर स्टैंडर्ड मैथ करके आया है सपोज, तो वो अप्लाइड मैथ ले सकता है इफ ही इज विलिंग टू ऑप्ट it as optional or additional. Clear है. So ये